Hey, hi everyone. My name is Vinita and welcome to this channel. So basically आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स करंटली मैथमेटिक्स ऑप्शनल के हैं और वो अपना टाइमलाइन एक डिसाइड करना चाहते हैं. दे आर बेसिकली अपियरिंग इन 2026. सो आई एम टारगेटिंग 2026 पीपल कि what should be the realistic timeline of preparation in order to balance GS as well as the optional preparation. Because see, मैथ्स ऑप्शनल में द वेरी कॉमन कन्फ्यूजन जो सभी को होती है, इनफैक्ट द कॉमन ऑब्स्टेकल दैट एवरी वन फेसेस इज द syllabus is very vast. It is time consuming. You have to practice because without practicing तो फिर syllabus नहीं होगा. So you have to practice a lot. The syllabus is vast. So उस केस में you कहीं ना कहीं your GS preparation gets compromised. So today I'll be discussing what can be the realistic timeline or timetable जिसके चलते with the help of which you can prepare your syllabus in due time, and you can also revise 2 times before prelims, because revision again is a very important thing, a very important part, in fact the most important part of the preparation. So आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे. So basically I'm assuming that you people are either preparing for the examination only or you people are working as well and preparing side by side. So either you are a working professional or full-time aspirant. So I'm targeting everyone. और working professionals के लिए I'll release another video targeting specifically the people who are working professionals. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. Let's start. How can you balance the preparation and how can you score 400 plus in mathematics optional? Okay. So first of all, see, let me tell you, your prelims, next prelims, let's assume कि May 2026 will be your next prelims month. So you have, this is currently May तो चला ही मतलब May तो जा ही चुका है. So let's assume you have 10 months. 10 months from now onwards. 10 months. And you haven't started your preparation yet. You are completely new to this journey. So अभी आप क्या करोगे? First of all, for maths optional, you will first go through the syllabus, go through the PYQs, and go through the resources. If you want to do self study, या फिर if you want mentorship, then go for the courses. If you want to check my course, then it is currently running on the application for 2026 people, and you can clearly see कि अभी हमारे 62 sessions have been done. ODE is currently running, ODE session 28. कैलकुलस का कल पहला सेशन हुआ है. So far we have completed linear algebra and ordinary differential equations. Calculus it started. We started calculus yesterday only. Last night ही हमने calculus शुरू किया है. So you can go and check this course. इसमें I mean if you attend these classes, you will not need any kind of resource. You will not need any book. You will not need any practice papers. You will not need any PYQs solutions because हम PYQs class में discuss करते हैं. I provide each and everything to you people. इन केस कोई बुक रिक्वायर्ड है, बहुत ही मैंडेटरी है, तो मैं उसका PDF प्रोवाइड कर देती हूँ. सो यू कैन गो एंड चेक दैट कोर्स. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो दिस लेक्चर. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर टारगेटिंग मैथ्स ऑप्शनल, सो बाई 1st of June make sure you have the syllabus, you have the PYQs, you have decided how you are going to proceed with this optional. कैसे आप तैयारी करोगे इस ऑप्शनल की? खुद से करोगे या मेंटोरशिप, जो भी आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, बाई जून आपको कर लेना है ये. लेट्स से June of 1st, यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम June of 1st टिल जुलाई एंड अगस्त और टिल सेप्टेम्बर. मेक श्योर आपका 70%, 60 to 70% सिलेबस इज़ डन. 60 to 70% सिलेबस इज़ डन. thoroughly, comprehensively, completely ये डन है. When I say 60 to 70% सिलेबस, इट मीन्स जैसे कि अपने पास 13 सेक्शंस हैं,
वी हैव 13 सेक्शंस इन टोटल, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके 7 to 8 सेक्शंस आर फिनिश्ड, 7 to 8 सेक्शंस आर डन, ठीक है। आई मीन ये सिर्फ वो नहीं होने चाहिए जो कि आपको जो डूएबल सेक्शंस हैं। मेक श्योर जो थोड़े से टफ सेक्शंस हैं, थोड़े से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट सेक्शंस हैं, फॉर इंस्टांस रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, तो उनमें से भी एक सेक्शन कर लेना, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। सो 7 to 8 सेक्शंस लेट्स सपोज यू हैव टू कंप्लीट बाय अगस्त और सितंबर। अब ये कैसे करना है? First of all, whatever section you pick, whatever subject you pick, let's suppose you are picking up ODE. So ODE में topic based preparation करो, topic based, make your own notes. Even if you are associated with some coaching institute, so you have to make your own notes. और वहाँ पर आपको सब कुछ सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है. Even then make your own notes. If you are buying the notes from some institute, even then make your own notes. Plus per topic, try practicing 10 to 15 questions. 10 to 15 questions based on the UPSC PYQ pattern. जैसे फॉर इंस्टांस अगर मैं बात करूँ, लेट्स से you are studying orthogonal trajectory and you are practicing questions based on just the Cartesian coordinates, but UPSC has asked questions based on polar coordinates. So try doing questions based on polar coordinates. So whatever UPSC has asked in previous questions, एक बार गैदर करो वो. You will find the PYQs on my website. टॉपिक वाइज PYQs आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. इफ़ यू ज्वाइन माई कोर्स, तो मैं तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब आई बेसिकली टेक फ्रॉम ईजी देन मॉडरेट देन डिफिकल्ट लेवल, इस तरह से देन वी डू PYQs ऑफ UPSC. सो बेसिकली आफ्टर द क्लास द PYQs सीम लॉट ईजियर, है ना. बिफोर द क्लास अगर देखोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, but after the class, after doing questions, PYQs seem lot more easier. And because recently UPSC has introduced something new, जैसे ODE में थ्योरम पूछ ली गई है, या फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है, इनवर्स ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछने लग गई है. तो बेसिकली अभी इन दिस बैच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू टॉपिक्स एज वेल, न्यू टॉपिक्स एकोमोडेटिंग द ट्रेंड ऑफ UPSC, है ना. जिस तरह से चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ा है. आई वॉन्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 10 to 20% इंक्रीज हुआ है इन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ मैथ्स ऑप्शनल पेपर. सो अभी मैं बोलूँगी इट इज़ स्टिल प्रिडिक्टेबल, बट यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन, यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर प्रिपरेशन ए बिट. ठीक है, थोड़ा सा जैसे एक्सटेंडेड टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं हुआ है ना. सिलेबस इज सेम, ये मत सोचना कि सिलेबस चेंज हुआ. सो व्हाट आई सेड, बाय अगस्त और सितंबर मेक श्योर 7 or 8 सेक्शंस आर फिनिश्ड. यू हैव योर ऑन नोट्स उन सेक्शंस के, पर टॉपिक 10 to 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन UPSC PYQ पैटर्न, प्लस UPSC PYQs need to be solved. PYQs solve. You have to solve them on your own. Okay, this you will be doing in the first part by August और September. इस टाइम में इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, जैसे ये कोई सेक्शन फिनिश होता है, ट्राई रिवाइजिंग इट, ट्राई रिवाइजिंग द सेक्शन एज सून एज यू फिनिश इट. जो भी सब्जेक्ट फिनिश होता है, फॉर इंस्टांस वी फिनिश लीनियर अलजेब्रा, देन रिवाइज इट देयर एंड देन ओनली. It will take few days, obviously it will take 3 days, it may take 6 to 7 days as well, based on कि सबसे पहली बार आपने कितना अच्छे से पढ़ा है या फिर कितना केयरलेसली पढ़ा है, तो वो ज़्यादा दिन लेगा रिविज़न करने में. बट अगर आप तभी से रिवाइज कर सकते हो तो इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज इन दैट केस जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे then it will need lesser time, it will take lesser time, है ना, then it took in the first revision. So ये एक चीज़ होती है कि जो भी सेक्शन, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करोगे. रिविज़न टॉपिक वाइज रहेगा, टॉपिक बेस्ड रिविज़न रहेगा. डू नॉट रिवाइज एनी सब्जेक्ट पेज वाइज,
है ना, कि ये पहले पेज पे लिखा है देन नेक्स्ट पेज, डोंट डू इट लाइक दिस. जस्ट ट्राई टू हैव इन योर माइंड व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. फॉर इंस्टांस क्वेश्चंस इनवर्स ऑफ टी से आया, questions from diagonalizability, questions from eigenvalues, eigenvectors. So try dividing your subject into these topics and then topic based revision आप करोगे. ठीक है, तो बाय अगस्त और सितंबर आपको ये काम कर लेना है कि सिलेबस अपना इस तरह से मैनेज हो जाए. देन आफ्टर सितंबर यू विल बी रिवाइजिंग. जब आप रिवाइज करोगे ना, फर्स्ट रिविज़न जो रहेगा सितंबर टू नवंबर, your first revision will run from September to November. September to December के लो, November और December. So during this time period you will practice questions that are already done by you. ऑब्वियसली आप जो भी बुक्स या रिसोर्सेज फॉलो करोगे वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होंगे जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. आई मीन जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करते हैं. सो मेक श्योर यू डू द क्वेश्चंस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम दोज बुक्स. ठीक है, तो जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे यू डोंट नीड एनी न्यू क्वेश्चंस. अगर आपने पहली बार अच्छे से किया था तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करो, बट मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द राइट रिसोर्सेज. ठीक है, राइट रिसोर्सेज फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर इंस्टांस इन ओडी में एम.डी. राय सिंघानिया है. देर आर मैनी क्वेश्चंस इन दैट बुक, बट इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग द सिमिलर क्वेश्चंस तो फिर कैसे वो चलेगा काम. आई मीन यू हैव आइडेंटिफाइड दैट पैटर्न, और क्वेश्चन थोड़े से इजी भी हैं उसमें, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस. सो ट्राई आइडेंटिफाइंग कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व हो रहा था, तो ट्राई सॉल्विंग दैट क्वेश्चन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. इफ देर इज सम डिफरेंट फॉर्मूला इन सम क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन इन दैट क्वेश्चन, या थोड़ा लेंथी है, तो उस केस में ट्राई सॉल्विंग दैट क्वेश्चन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. सो इन द फर्स्ट रिविजन यू विल बी रिवाइजिंग द क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी डन till August or September, and plus PYQs you have to keep doing, है ना, हमेशा करना है, करते रहना चाहिए आपको PYQs, क्योंकि उनसे मतलब आई मीन दैट इज़ लाइक अल्टीमेट सोर्स, कि उससे पता चलेगा आपको कि क्या टॉपिक कहाँ तक पढ़ना है इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. अदरवाइज इफ़ यू ज्वाइन माई क्लासेस तो उसमें तो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि दिस टॉपिक हैज़ बीन आस्क्ड दिस ईयर्स एंड किस तरह के क्वेश्चन इससे आए हैं. Then for your second revision will run till December to April, है ना. अप्रैल में आप अपनी प्रिपरेशन ऑब्वियसली छोड़ दोगे क्योंकि मई में प्रीलिम्स रहेगा. ठीक है, तो बट अप्रैल तक टिल 1st of April आपका सेकेंड रिविज़न हो जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 7 to 8 sections. इफ़ यू आर एबल टू फिनिश मोर सेक्शंस, मोर सब्जेक्ट, देन इट इज़ वेरी गुड. ठीक है, अगर वो सेक्शंस भी वो सब्जेक्ट्स भी आपके फिनिश हो जाते हैं तो आप सिमिलर टाइप से आप टाइमलाइन फॉलो करोगे. सितंबर टू दिसंबर, देन दिसंबर टू मार्च और अप्रैल. मार्च और अप्रैल का जो सेकेंड रिवीजन होगा इसमें आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टेकिंग शॉर्ट नोट्स. कैसे, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस. जैसे कि इफ़ द क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप देन माई सोल्यूशन वुड बी लाइक दिस, कि इफ़ इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देन CF का फॉर्मूला, PI का फॉर्मूला, वर्किंग रूल फॉर PI, वर्किंग रूल फॉर बाइसेक्शन मेथड, वर्किंग रूल फॉर basically Euler's method, modified Euler's method. So you will be making short notes particularly for those subjects which are very much doable, जिनमें सिर्फ एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है. सो यू शुड हैव योर शॉर्ट नोट्स विद यू बिफोर प्रीलिम्स. इसमें आप एक और चीज़ करोगे, फॉर्मूले नोट्स भी बनाओगे, फॉर्मूले शीट भी इनकलकेट करोगे. whatever new formula that you come across, whatever new thing that you come across, कोई नया I mean to say नई टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन है which you didn't know जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था. So you will inculcate those formulae or those tips and tricks in those short notes.
दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज मेंस में जब आपका ऑप्शनल का पेपर रहेगा उससे पहले देर विल बी देर विल बी योर GS पेपर्स एज वेल, सो यू विल गेट वेरी लेस टाइम, यू कांट गो थ्रू ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, सो यू शुड हैव शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूले शीट विद यू जो कि एंड टाइम पर रिवाइज कर लिए, स्पेशली जिनमें फॉर्मूलों में हमसे गलती होती है। फॉर इंस्टांस ट्रिग्नोमेट्री के जो एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, या फिर फॉर इंस्टांस एक्सपोनेंशियल एक्सपांशंस, साइन कोसाइन एक्सपांशंस, डेफिनेट इंटेग्रल प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं, सो यू शुड हैव लाइक हेडिंग्स लाइक दिस, हाउ डू वी चेंज इंटीग्रेशन लिमिट्स, स्टोक्स थ्योरम में हाउ डू वी डिटरमिन द प्लेन, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, कौन सा प्लेन लेना है। देन ट्राई टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स, ट्राई मैंशनिंग कि हाँ इन एग्जाम्पल्स में दिस प्लेन हैज़ बीन टेकन, रीज़न बीइंग दिस, इस तरह से जस्ट लाइक दिस। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं हुआ था एंड इट इज़ गिवन इन द रेफरेंस बुक, देन इट इज़ ए मस्ट डू प्रॉब्लम, तो उसको थोड़ा सा ट्राई टू समराइजिंग इट कि हाँ मतलब ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इज देर समथिंग जो कि आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, वो नहीं कह रही हूँ मैं। यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और दैट आर अनसॉल्वेबल, जो कि आपको आपकी रेफरेंस बुक में दी गई हैं, बट इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर सॉल्व करना पड़ रहा है उनको। So there will be problems like this. For instance, in real analysis or in modern algebra, there will be theorems. So theorems में generally we do not get the idea how to solve the theorems. So उस case में you should have like a little bit briefing of कि how to proceed in this question. उन short notes या formula में आप inculcate करोगे। This you will do in the second revision, जो आपका second revision रहेगा। तो ये तो बात हो गई timeline की। So basically this is the right time to start your optional preparation. You can't delay than this, है ना, क्योंकि once you delay ना फिर क्या होगा, जैसे कि आपका दिसंबर तक आपको मेंस का पढ़ना है, बाय टिल दिसंबर, टिल नवंबर और दिसंबर यू हैव टू सोलली फोकस ऑन योर मेंस प्रिपरेशन, जो सोलली मेंस बेस्ड सब्जेक्ट है। फॉर इंस्टांस इथिक्स एंड इथिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एंड योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, सो दिस हैज़ टू बी डन, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैज़ टू बी स्टडीड बाई दिसंबर। जैसे ही दिसंबर ख़त्म होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन और एनी काइंड ऑफ मेन्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट, बिकॉज प्रीलिम्स की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेली यू विल फील लाइक दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक इन द प्रीलिम्स, एंड उसके बाद जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा तो आपको लगेगा कि लेट्स ड्रॉप दिस अटेम्प्ट। पूरा साल वेस्ट हो जाने के बाद इन दी एंड यू विल थिंक कि लेट्स ड्रॉप दिस अटेम्प्ट, तो वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस आपको ना हो। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू, ए लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन ऑलरेडी मैथ्स ऑप्शनल की अप्रैल मई से, एंड आप अभी और डिले करोगे दैट मीन्स यू आर वे बिहाइंड इन द रेस। हाँ ये अच्छी बात है दैट इफ़ यू आर एबल टू मेक इट, मतलब आपको ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इवन इफ़ यू हैव स्टडीड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो ट्रीट इट लाइक कि आपका रिविज़न और बेटर होगा। इफ़ यू स्टार्ट अर्लियर, यू विल फिनिश अर्लियर, है ना, तो वो ऐसे मान के चलो कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा फिर, एंड जितना रिवीजन होगा, जितना प्रैक्टिस होगी, उतनी परफॉर्मेंस होगी, जितनी प्रिपरेशन अच्छी होगी उतना ही बैटल फील्ड में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डेली टाइम मैनेजमेंट, तो डेली यू शुड ट्राई कि 3 to 4 hours you are devoting to your optional preparation, to maths optional, 3 to 4 hours to your maths optional preparation. अब इसमें it includes classes. Now what is that one thing you have to do beside classes? Revision plus
doing the questions that are already done in class, doing questions already done in class, already done in class. These are the two things you need to inculcate in these 3 to 4 hours. या 3 to 4 hours के बाद let's assume you are basically studying 6 to 8 hours per day. 6 to 8 hours target I think is achievable for both the type of candidates, working professional as well as full time aspirant. फुल टाइम वाले तो और ज़्यादा दे सकते हैं टाइम, है ना. सो 6 to 8 आवर्स में अवेलेबिलिटी अगर मान कर चलूँ तो उसमें से आप 1 आवर न्यूज़पेपर को दोगे, 1 आवर न्यूज़पेपर. फिर आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें ट्राई टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है. 2 सब्जेक्ट्स 1.5 आवर ईच, 1.5 आवर ईच. इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करोगे, ठीक है. संडेज आर टू बी केप्ट फॉर रिविज़न, ये दिस एवरीबडी नोज, है ना. एक दिन ऐसा रखो, ज़रूरी नहीं है कि संडे ही हो. आफ्टर 6 to 7 days यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डन, ठीक है. ऑल्सो कीप असेसिंग योर प्रिपरेशन, जैसे दिस मंथ हाउ मच यू स्टडीड, कितना पढ़ा आपने. कीप इट ट्रैक ऑफ इट. इनफैक्ट इट शुड बी डन ऑन ए डेली बेसिस, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा. अगर आप डेली सुबह अपना दिन प्लान कर रहे हो और रात को अपना दिन असेस कर रहे हो, देन ऑलरेडी यू आर वे अहेड ऑफ मैनी ऑफ द क्राउड्स. बहुत सारे लोग तो सीरियस भी नहीं है, लेट मी टेल यू अभी. सो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली एंड वेन एवर यू गो टू बेड तो ट्राई असेसिंग कि क्या क्या टारगेट्स आपने आज फिनिश किए और कौन कौन से टारगेट्स रह गए. और ये चीज़ नहीं करनी, जैसे मैथ्स ऑप्शनल में मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ऑब्जर्व किया है. दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट इज आई मीन थोड़ा इट्स आई मीन एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग, द टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग, द क्वेश्चंस आर डूएबल, द क्वेश्चंस आर ईजी टू मॉडरेट. Then as soon as the questions get tougher, the level gets tougher, तो they start losing interest. वो चीज़ आपको नहीं करनी है. देखो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शनल देन यू हैव टू स्टडी everything that is mentioned in your syllabus और everything that has been asked in your paper, ठीक है. जो भी आपके रेफरेंस बुक्स में दिया गया, एनीथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एनीथिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू अवर सिलेबस, सो वो सारा कुछ ही पढ़ना है आपको. सो बेसिकली यू हैव नो चॉइस. सो इसमें भी आपको ये नहीं सोचना है कि दिस सब्जेक्ट इज़ इंटरेस्टिंग सो मैं इसमें अपना 100% दूंगा, एंड दिस सब्जेक्ट इज़ काइंडा लेस इंटरेस्टिंग, बोरिंग है तो मैं उसको छोड़ दूंगा. ऐसे नहीं चलता है. जो आपका डिफरेंस आता है, जो आप मुझसे पूछते हो कैन वी स्कोर 400+ मार्क्स, द डिफरेंस लाइज देयर, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे लोग वो सब्जेक्ट नहीं कर पाते हैं जिनमें आपको एक एडिशनल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जिसमें आपको थोड़ा सा और यू हैव टू पुश योर सेल्फ. आई मीन द थिंग्स आर बोरिंग एंड नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. इट विल लुक लाइक कि समथिंग जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब देर इज़ सिमिलर टाइप ऑफ आई मीन देर इज़ समथिंग जो कि आप खुद से कुछ नहीं सोच पा रहे हो. जैसे इन मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स यू मे नॉट बी एबल टू थिंक ऑन योर ऑन. मॉडर्न अलजेब्रा इज ए सब्जेक्ट लाइक दिस. सो वहाँ जब आप स्टे कर जाते हो, वहाँ जब आप स्टैंड करते हो, वहाँ जब आप आई मीन अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन और वो जो बोर्डम है उसको फेस कर जाते हो, देन बेसिकली यू विल हैव द कैपेबिलिटी कि हाँ आप 400+ तक अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड you have that basically you have that aptitude to score that much marks, and you deserve that number basically 400+. So आपको ये चीज़ नहीं देखनी है अभी कि मेरा कितना मार्क्स बन सकता है इतने सिलेबस से. आई मीन you have to study each and every section, each and every subject, और उतनी ही झील के साथ, उतने ही एंथुजियाज़म, उतने ही एंथुजियास्टिकली आपको वो सब्जेक्ट पढ़नी है. नो मैटर हाउ बोरिंग it is, no matter how interesting it is. I mean you should treat each and every subject equally, unless and until there are certain things जो कि typical हैं, तो उसमें आप go slow उसमें.
एंड डोंट रश इनटू द थिंग्स कि मतलब हाँ इसमें मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं करना है। और ना ही ऐसे करना है कि ये तो मेमोराइज ही तो करना है तो आई डू इट लेटर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आई डू इट लेटर, ऐसे नहीं। समझ समझ के चीज़ों को कवर करना है, ठीक है, समझ समझ के चीज़ों को कवर करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। और अगर इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स ना, इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स यू हैव दैट लॉजिकल, आई मीन कि आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, देन यू शुड गो विद दिस ऑप्शनल। लेट मी टेल यू, आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम योर जीएस, आई मीन अपार्ट फ्रॉम ऑल द जो आपको बेसिकली मेमोराइज करना पड़ेगा, ऑल द थ्योरेटिकल थिंग्स, ये प्रैक्टिकल रहेगा आपका, है ना। यू विल हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, सो थोड़ा अप्लाइड भी है, थोड़ा प्योर भी रहेगा। सो इट विल बी लाइक एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, है ना, जो आप पढ़ोगे। फिज़िक्स भी पढ़ोगे इसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी पढ़ोगे, तो इट इट विल नेवर बी बोरिंग अनलेस एंड अनटिल आप खुद उसको बोरिंग बना रहे हो, बिकॉज यू डोंट लाइक द लॉन्ग कैलकुलेशंस, यू डोंट लाइक दिस इंटीग्रेशन, सो उससे तो आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे ही ना। तो basically if you have opted for this optional and if you are confused about this optional, confused हो तो ये रीज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वास्ट सिलेबस है। यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है इस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया है तो उस केस में आपको अभी इस प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करनी होगी, ठीक है, बिकॉज इट्स मे एंड ऑलरेडी, अभी तक तो आपके 2 या 3 सेक्शंस फिनिश हो जाने चाहिए थे। मैनी कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, सो यू डोंट, आई मीन डोंट लैग बिहाइंड, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, टाइमलाइन बताई है, ये आपकी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। और भूल जाओ ये चीज़ कि सिलेबस वास्ट है, बहुत सारा सिलेबस ना यूँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारा सिलेबस जस्ट एल्गोरिदम क्वेश्चन, एल्गोरिदम क्वेश्चन, एल्गोरिदम क्वेश्चन, ऐसे रहेगा। जो टफ सेक्शंस है ना वो तो हर सब्जेक्ट में होंगे, तो हर सब्जेक्ट में होंगे ऑब्वियसली, बट इसमें कम से कम इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इफ़ यू पिक एनी अदर ऑप्शनल इन विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट आपने इसलिए ले लिया बिकॉज मेजॉरिटी इज़ टेकिंग इट और सिलेबस कम है, तो उसमें तो डेली आपको यू हैव टू लाइक पुश योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू स्टडी इट बिकॉज इट हैज़ लेसर सिलेबस एंड इट इज़ स्कोरिंग, तो स्कोरिंग तो ये भी है। सो चॉइस इज़ ऑल योर्स, है ना। तो अभी तक तो कोई कन्फ्यूज़न एज सच नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। बस आपको ये है कि यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स इनटू इट, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो ना तो वी प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लासेस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इफ़ आई ओपन एनी ऑफ द सेक्शंस, कोई भी सेक्शन अगर हम ओपन करें तो अभी शायद वो Put s चलेगा, is equal to 0, सॉरी s is equal to 1 in the currently end. the topic To that is find the running other values. वो लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास। yesterday we discussed the convolution property, so you can join this course, I'll share the link in the description below this lecture, because उसके बाद आपको किसी और चीज़ की, I mean you will not have to worry about anything, resources and all। और यार यूट्यूब पर पूरा कोर्स मैं नहीं कंप्लीट करवा सकती हूँ, आई मीन ऑब्वियसली इट हैज़ ह्यूज सिलेबस एंड I seriously can't complete the complete course on YouTube. I cannot commit to that, क्योंकि उसमें मुझे फिर डेली एफर्ट्स डालना पड़े, डेली मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा बस। बट आई डू गारंटी फ्यू थिंग्स, आई डू गारंटी कि मैं PYQs कवर करवाऊँगी on YouTube, and also I mean I'm bringing up practice sessions, I'm bringing up practice sessions as well, जैसे linear algebra के practice sessions are available, in the same way I'm coming up with the different sections, practice sessions, statics and dynamics, modern algebra, so इन सब के practice sessions मैं लूँगी यहाँ पर।
उससे क्या होगा आपको, उसमें मैं थ्योरी भी डिस्कस करूँगी, आई डिस्कस द कॉन्सेप्ट एज वेल. सो इन केस यू पीपल कांट परचेज द कोर्स, तो इन दैट केस थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मेरी साइड से कि उसमें कॉन्सेप्ट आप कवर कर लेना, एडिशनल क्वेश्चंस आप कवर कर लेना. सो दैट विल बी इट. ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर.